everyone, I'm Monica. Today we will read about the electric power. In the previous video we have discussed about the thermal effect of the current and completely हमने इस वीडियो को बहुत अच्छे से बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक पावर है। आज हम इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं पूरी पावर के साथ। So let's start our topic. What is the power? Power is nothing but rate of doing work is called power. मीन्स आपने करंट को फ्लो कराने के लिए सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए जो वर्क किया पर सेकंड वही क्या है आपकी पावर। सो पावर की डेफिनेशन निकल कर उसमें आती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या बन जाएगी आपकी? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गई आपकी? वो जो आपने करंट को फ्लो कराने के लिए जो वर्क किया पर सेकंड वही क्या बन रही है आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय W, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय T। In the potential difference equation V is equals to W upon Q. What will be आपका W? W is equals to V multiply Q. Put this equation in this equation. W is equals to V into Q upon T. What is the Q? We have studied about I equals to Q upon T. What is the Q? I multiply T. Your Q क्या बन जाएगा? आपका Q क्या बन जाएगा? I into T. Put this Q in this equation. V is into I T upon T. अब देखिए T से मेरा T कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसकी इक्वेशन चल रही है आपकी? ये P की इक्वेशन चल रही है। तो ये वाला T कैंसिल हो जाएगा इस वाले T से। तो आपके पास P इज इक्वल टू क्या बचता है? V into I। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है याद रखने के लिए लाइफ टाइम के लिए कि हमारी पावर क्या होती है? V into I. P is equals to V into I. देखिए आपको दो तरीके से आपकी फॉर्म मिल चुकी है P की। P is equal to W upon T. सेकंड आपको मिल चुकी है P is equals to V into I. अब देखिए यहाँ पर आप P is equals to V into I को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? You know already from the Ohm's law what is the V? V is equals to IR. So put here I into R and I also. What it will become? I into I square into R. So another equation will occur. P is equals to I square R from the Ohm's law. Next we can write this equation also. P is equals to VI. Now what is the I? According to Ohm's law, V is equals to IR. But I will found I. So what it will become? V upon R. So I is equals to V upon R. So put it here. V into I is equals to what? V upon R. You can say write like this. V into V square upon R. This is the third form of the P. So you can write your power in so many types. First, P is equals to W upon T. Second, P is equal to V into I. Third, P is equal to I square R and P is equal to V square upon R. ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है लर्न करने के पर्पस से भी और किसी चीज को आगे सॉल्व करने के पर्पस से भी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी यूनिट। Now we will find out unit of the power. What is the formula of power? Power is equals to energy upon time or you can say work upon time. तो power के लिए मुझे यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो पावर के लिए क्या हो गया? वर्क की यूनिट बताइए क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एंड टाइम की यूनिट हम किससे मेजर करेंगे? टाइम इज मेजर्ड इन द सेकंड। So what will become? Joule per second. And आपका जूल पर सेकंड क्या बन जाएगा? वॉट। क्या बन जाएगा? सो हमें पावर
पावर की यूनिट क्या मिल चुकी है, वॉट मिल चुकी है। सो अब ये बहुत छोटी यूनिट होती है, वॉट क्या होती है आपकी, बहुत ही छोटी यूनिट होती है। सो हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह पर, हम वॉट यूज ना करके हम यूज करते हैं किलोवाट, मेगावाट एंड लाइक हॉर्स पावर। क्या यूज करते हैं हम, हॉर्स पावर। सो लेट इट बी kilowatt means what, kilo means you can write here 1 also, 1 kilowatt means 1000 watt, kilo means what, 1000 and watt as it is here. So we can write this equation 10 to power 3 watt as it is like here for 1 megawatt as it is like here for 1 megawatt. What is the mega? This, and it will become 10 to power 6 watt. Mega is what, 10 to power 6 and kilo is what, 10 to power 3. For 1 horsepower, what is the 1 horsepower, 746. What is called the 1 horsepower. These 3 equations are important for the power measure units. This is most important. 1 horsepower is equal to 746 watt. Next, what is the electrical energy? अभी हमने फॉर्मूले से देखा पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एनर्जी, और यू कैन से वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए मैं इससे ये वाली एनर्जी निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाहूँ, तो पावर और इनटू क्या हो जाएंगे ये, अगर मैं इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मेरी पावर एंड टाइम क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टाइम, हावर। तो देखिए क्या बन चुकी है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं WH। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या बन जाती है, WH। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपकी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो आपने खर्च कर ली है। बेसिकली हम लोग क्या मान के चलते हैं, हमारी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वॉट इनटू हावर होती है, बट मोस्टली हम वॉट इनटू हावर ना मानकर कमर्शियली यूज करते हैं किलोवाट हावर। अब देखिए कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इसे किलो में कन्वर्ट करना है तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम अपॉन 1000। अब ये करती हमारी यूनिट किसमें आने लग जाएगी, अपने यहाँ पे आपकी किलोवाट हावर में आपकी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू व्हाट इन द जूल। अब मुझे 1 किलो हावर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, देखिए जूल में क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर क्या होती है आपकी, किलोवाट में आने वाली है, तो पावर किलोवाट, किलो मींस 10 टू पावर 3, वाट इनटू टाइम इज इन हावर। ओके, बट मुझे इस चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, 10 की पावर 3 एज इट इज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द व्हाट, जूल पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द व्हाट, जूल पर सेकंड। अब मैं इस अगर हावर को उसमें कन्वर्ट करती हूँ सेकंड में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 3600 सेकंड। यू नो ऑलरेडी 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया आपका, क्या बचता है आपको, 10 की पावर 3। हियर आर 10 की पावर 2, 2 0 means 100. You can write this 3600 is equal to 36 multiply 100 and this 100 will become 10 to power 2. तो देखिए अगर मैं 10 to power 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, what is the remaining here, 36 and joule. So look at the here, what will become, जब बेस सेम होते हैं पावर्स क्या जाती है, ऐड जाती है, तो it will become 10
10⁵ into 36 जूल। अगर आपको इसको सही तरीके से लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। ये हमारी सही फॉर्म होती है। तो इस तरीके से 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है 36 into 10⁵ जूल। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले वाले फॉर्मूले में हमने 1000 नीचे क्यों लगाया था कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो वहां पर इसका रीजन देखिए, हमने पावर हमें बनानी थी किसमें यूनिट किलोवाट हावर में बनानी थी। किलोवाट हावर में हम कब बना सकते हैं जब हम पावर को किसमें लेंगे किलोवाट के अंदर लेंगे, राइट। पावर को किसमें लेंगे किलोवाट के अंदर और हमारा टाइम हावर के लिए। अब देखिए हमारी रियल तो क्या होती है, रियल यूनिट क्या होती है ओनली वाट इनटू हावर। तो देखिए के से 1000 कट जाएगा तो आपको वाट इनटू हावर बचता है, तो आपकी इक्वेशन किस होती है बैलेंस। तो इसलिए हम कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किलोवाट हावर बनाने के लिए नीचे क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं पिछले वाले फॉर्मूले में। नेक्स्ट वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर। 2 bulbs of 100 watt are lighted 8 hours per day। 100 watt के 2 बल्ब ऐसे हैं जो 8 घंटे हर दिन चल रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन 1 month। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड का। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम अपॉन 100। सॉरी, power into time upon 1000। So what is the data is given here? Power is equals to what? Power is 100 watt। Second, time is what? 8 hour per day। 8 hour per day। So put the values in your formula। Electricity consumed is equals to power 100। बट ये पावर सिर्फ एक वोल्ट, एक हमारी बात 2 बल्ब की चल रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज ऑफ द 2 बल्ब। तो पावर क्या हो जाएगी 100 into 2। व्हाट इज द टाइम 8 आवर पर डे। बट आपको किसकी फाइंड करनी है 1 मंथ की फाइंड करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर डाटा जो टाइम गिवन है वो सिर्फ एक दिन का गिवन है। अगर मैं पूरे मंथ का निकालूं तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 30 किसका हो जाएगा पूरे मंथ का, क्योंकि मंथ में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी टाइम 8 into 30 अपॉन 1000। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट एंड 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। व्हाट इज रिमेनिंग हियर 8 to the 16, 16 is a 48 and answer will be 48 unit। This is the electricity consumed। कितनी कंज्यूम हो गई हमारी 48 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो चुकी है कंज्यूम हो चुकी है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a electric bulb of 200 volt is connected with source of current of 0.5 ampere। आपका कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है कितने वोल्ट का है वो 200 वोल्ट का है और वो कनेक्टेड है किसके साथ में करंट के साथ में। कितनी करंट 0.5 एम्पीयर की करंट के साथ में। तो आपको कह रहा है कि आपको बल्ब की पावर फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देखिए डाटा लिख लीजिए। सबसे पहले क्या गिवन है आपको वोल्टेज गिवन है। व्हाट इज द वोल्टेज 200 वोल्ट। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको करंट गिवन है। व्हाट इज द करंट, करंट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। यू नो ऑलरेडी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारा पावर का जिसमें वोल्टेज और करंट आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा P इज इक्वल्स टू V into I। P is equals to V into I। Put these value in this equation। Power is equals to V। What is the voltage 200 volt into what is the I 0.5। This is the ampere। Ampere into watt क्या बन जाएगा हमारा watt multiplied 200 with 0.5। 5 to the 10 ये बन गया मेरा 1000 और एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 100 वाट। तो मेरी पावर क्या आ चुकी है 100 वाट इस न्यूमेरिकल के लिए। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a 50 ohm 9 ohm resistance coil is connected with a storage battery of 10 volt।
हमने क्या किया, एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, उससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और उस सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है हमें नहीं पता, और 1 आवर के लिए पास हो रही है, हमें ये टाइम पता है। देन कैलकुलेट हीट जनरेटेड इन द कॉइल, तो हमने आज पढ़ी ही नहीं फिर, बट हमने हीट को प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हीट, जूल्स लॉ। व्हाट इज द जूल्स लॉ, H is equals to I square R into T. What is the heat? Heat is nothing but H is equals to I square R into T. This is the Joule's law and equation of the heat. So, अब देखिए मुझे फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या डाटा गिवन है, देखिए एक डाटा गिवन है मेरे पास 50 ओम रेजिस्टेंस, इससे पता चल रहा है मुझे क्या है मेरे पास 50 ओम रेजिस्टेंस। देख लीजिए यहाँ पर गिवन इज दैट R is equals to 50 ओम। सेकंड डाटा आपके पास क्या गिवन है, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। आपके पास बैटरी कितना है, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद में देखिए इफ करंट इज पास इन द सर्किट, करंट हमें नहीं पता, और क्या गिवन है हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको हीट फाइंड आउट करनी है। ये हमने डाटा लिख दिया है और हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है H is equals to I square R into T। अब इनमें से मैच कीजिए, हमारे पास क्या क्या है, R मेरे पास अवेलेबल है, T मेरे पास अवेलेबल है, मुझे किसकी नीड है यहाँ पर, I की नीड है। अब इस I को मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, अगर मुझे ये I मिल जाए तो मेरी इक्वेशन पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, मेरे पास हीट आ जाएगी। अब देखिए इस I के लिए मैं क्या करती हूँ, we know already what is the I is equals to V upon R from the Ohm's law. What is the V? V is here 10 volt and what is the R? 50 ohm. 0 से 0 का मेरे कट जाता है तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 0.2 एम्पियर। What will be आपका here 0.2 एम्पियर। तो अब मुझे मेरी क्या मिल चुकी है, करंट मिल चुकी है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं वैल्यूज, तो H is equals to what is the I? 0.2 का whole square. What is the I? Square of the 0.2 multiply what is the resistance 50 ohm. Now T time is equals to 1 hour, लेकिन मुझे हावर में नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए सेकंड्स में। तो किसमें बदल जाएगा ये, सेकंड्स में 3600 सेकंड। किसमें बदल गया ये 3600 सेकंड। मैं लिख सकती हूँ यहाँ 3600 सेकंड में ये मेरा बदल चुका है। अब मुझे H क्या मिल जाएगा, देखिए 0.2 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0.04 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 50 into 3600 सेकंड। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 7200 और मेरी क्या मुझे क्या होता है 7200 और मेरी हीट की यूनिट क्या होती है जूल। क्या किसमें मिल गई मुझे, ये जूल में मिल चुका है, तो मेरा ये आंसर मुझे अकर हो चुका है। In this video we have discussed about electrical power, numericals and unit also. In the next video we will discuss about the magnetic effect of the current. If my video is better for you, like and comment my videos and subscribe our channel. Thank you for watching my video.